Hi everyone, welcome to lesson 2 of learning Cage guitar chord system, and in this video we're gonna be talking about arpeggios and major pentatonic scale in shape of E. So I hope आपने last lesson के जो task थे where you have to make the shape on different frets वो आपने करा होगा. Like मैं आपको एक बार overview दे देता हूँ. आपको E string के किसी भी नोट को होल्ड करके उसे रूट assume करना है and then E shape को play करना है. So that would be your major scale. Okay, now in this case मैंने 5th fret E string को hold करा and play the same shape. It is the A major. And if I would go at 8, it's a C major. Now we'll be taking a step forward और हम सीखने वाले हैं कि हमें इसके अंदर arpeggios कैसे play करनी है. So first of all, arpeggios होते क्या हैं? Arpeggios is the breakdown of chord. किसी भी chord को जब हम breakdown and note by note play करते हैं, that's arpeggios. तो हम C major के arpeggios को step by step breakdown करते हैं और समझते हैं कि कैसा sound करेगा. ठीक है. So अगर हम E string के 8th fret पे root play करते हैं, which is a C note, that's the first. That's the root and first. Now A string 7th fret is the third. Then A string 10th fret is the 5th. And now D string 10th fret is again root. So इसे slow play करेंगे तो and ये होगा 1 3 5 7. And in Indian classical it sounds like सा गा पा सा. जब हमारा रूट प्ले हो गया then it's an octave. Now हम रेस्ट स्ट्रिंग्स पे भी प्ले करेंगे. सो जो हमारा D string 10th fret है, that's the root and also C. Now G string 9th fret is the third. Then B string 8th fret is 5th and E string 8th fret is the root again. So इसे slowly play करेंगे first octave से आते हुए connect करके. तो it sounds like it's C major arpeggios. अब इसे बहुत बार प्ले करो and just feel it. इसके टोन्स को सुनो. लीड गिटार के अंदर आर्पेजियोस का बहुत बड़ा रोल है एंड लाइक अगर आप कुछ भी प्ले कर रहे हो लाइक इन सी मेजर, आपको सी मेजर पे कुछ लीड करना है, आप आर्पेजियोस से उठा सकते हो सर. लाइक सो आर्पेजियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग गिटार और यही आपको बेसिकली लैंडिंग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अगर आपको लाइक C से आपकी कॉर्ड G पे शिफ्ट हो रही है देन आप सिंपली यू कैन गो विथ आर्पेजियोस लाइक So such type of songs and chords अगर आपको play करनी है then arpeggios are the best thing. Now we are heading to our major pentatonic scale. So in major pentatonic there are 5 notes जो 1, 2, 3, 5 and 6. These are 5 notes जो play होते हैं and it sounds pentatonic. Okay, which in this case in C major हम start करेंगे root E string 8th fret which is a C note. Then 10th fret is the second. Okay. Now A string 7th fret is the third. Then A string 10th fret is the 5th. Then D string 8th fret is the 6th. Then D string 10th fret is the root again. So मैं इसे slowly play करूँ तो it sounds like. Western we say 1, 2, 3, 5, 6, 7. And in Indian classical we would say sa re ga pa dha sa sa dha pa ga re sa. It is the major pentatonic scale. Now हम इसे आगे extend करेंगे further strings पे.
सो यहाँ पे हमारा डी स्ट्रिंग 10th फ्रेट पे हमारा ऑक्टेव हो रहा है। नाउ हम आएंगे जी स्ट्रिंग 7th फ्रेट इज अ सेकेंड, जी स्ट्रिंग 9th फ्रेट is the third, then B string 8th fret is the 5th. Now B string 10th fret is the 6th. Now E string 8th fret is the again root. Okay, so it's like, बट अब हमें इसे और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हर स्ट्रिंग पे 2 नोट्स प्ले करेंगे। तो हमारा जो 8th यहाँ पे रूट आ रहा है विच इज़ अ सी नोट, हम इसे 8 के साथ 10 भी ऐड कर देंगे जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, कि हमें एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए और हम इस शेप को ठीक से सीख पाए। ओके, विच इज़ द सेकेंड, सो इट्स रूट एंड सेकेंड। सो हम इस पूरी शेप को ठीक से जब विजुअलाइज करेंगे एंड स्लोली प्ले करेंगे, इट साउंड्स लाइक, और स्लो प्ले करें, इसे आपको एज इट इज ही सीखना है, बिकॉज जब आप इस पर्टिकुलर स्केल को सीख लोगे देन आप क्या करोगे, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ इस शेप को चेंज करना है एंड द रूल्स आर अगेन सेम। लाइक इन दिस केस हम ए मेजर पे आ चुके हैं एंड देन व्हाट वी गोना डू, हमें आरपीजीओस प्ले करनी है तो सेम मेजर पेंटाटोनिक प्ले करने हैं, देन अगेन सेम। अभी इनिशियली आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो या मे बी आपको लग रहा हो कि यार ये डिफिकल्ट है, बट अगर आपके पास अगर आपका एक पर्टिकुलर फंडामेंटल क्लियर हो गया देन इट्स इजी, बिकॉज ये अदर स्ट्रिंग्स पे भी उस पर भी सेम ही रूल्स अप्लाई होंगे अनटिल और अनलेस जब तक आप रूट ई स्ट्रिंग पे ही आप रूट को प्ले करते हुए स्केल को आगे प्ले करोगे। तो आपको रूट ई पे ही रखना है सबका। Like in G, you have to hold the 3rd fret, which is a G note, and then you can play it, something like that. Okay guys, so अब हम इसकी प्रैक्टिस एक बार स्टार्ट करते हैं अगेन, कि आप कैसे प्ले कर सकते हो और कैसे इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। तो आप YouTube पे जाके 60 BPM लिखो एंड देन मेट्रोनोम स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप क्या कर सकते हो, जो भी अब तक हमने सीखा है उसको आप ब्रेक डाउन करके प्ले कर सकते हो हर बीट पे। लाइक अगर मुझे आरपीजीओस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं 60 BPM पे ऐसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लाइक 1 2 3। आप इसके साथ जब आप ये प्ले कर रहे हो तो इसको और बेटर करने के लिए अपने आप को आप इसे बोल भी सकते हो साथ में, लाइक 1 3 5 1 3 5 1 5 3 1 5 3 1। इंडियन क्लासिकल में इसे प्रैक्टिस करना है तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो, सा गा पा सा गा पा सा सा पा गा सा सा पा गा सा। एंड आपको पता लगेगा कि नोट्स कहाँ पे प्लेस्ड है। एंड पेंटाटोनिक मेजर पेंटाटोनिक को आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक अगेन 1 बीट पे हम 1 ही नोट प्ले करेंगे, सो इट्स गोना साउंड लाइक। आप
इनिशियली ट्राई करो कि 1 बीट पे 1 नोट ही प्ले करो, एंड जैसे अगर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल प्लेइंग दिस, देन आप अपना BPM इंक्रीज भी कर सकते हो। लाइक ये 60 है तो आप 70 पे आ जाओ, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग, देन आप 70 से 80 पे जा सकते हो, एंड सो ऑन। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, सो आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से सीख लो, देन हम नेक्स्ट वीडियो हम मेजर स्केल को ब्रेक डाउन करेंगे एंड उसकी प्रैक्टिस देखेंगे। देन उससे नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बैकिंग ट्रैक, कि हम बैकिंग ट्रैक के ऊपर कैसे प्ले कर सकते हैं गिटार को, कि किस तरीके से जो मेरे लेसन 1 की जो लीड है वो मैंने कैसे प्ले करी है, कैसे फिगर आउट करी है। ये बैकिंग ट्रैक भी मैंने खुद बनाया, सो ये मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको लेसन अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।